Hello students, welcome to your English classes. I am Chanchila Tiwari, your English teacher. Today we will be reading your first poem from your book Panorama for class 10th. Okay, so now I will be uploading the videos for your lessons of class 10th Panorama and Panorama book as well as the reader book. So today the first poem from the Panorama book will be discussed. And the poem is God Made the Country. This is the name of the poem, God Made the Country. And it's been written by William Cooper. Cooper नहीं, William Cooper. I will be using Hindi also क्योंकि बहुत से बच्चों ने बोला है कि हिंदी में भी समझाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. So I will use both English and Hindi. Okay. So let's start. Let's start with the poet. Poet के बारे में हम जान लेते हैं. So he is William Cooper. Okay. And William Cooper born on 1731. William Cooper born on 1731 and he died on 1800. William Cooper born on 1731 and he died on 1800. And he was a British poet. किस भाषा के poet? कहाँ के? British poet. If questions come in your exam कि William Cooper किस कहाँ के poet थे, तो you can always write British poet. Okay. The poet had written about rural life and nature like Wordsworth. तो इनकी USP क्या है कि ये जो है रूरल लाइफ के बारे में यानी कि ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत बढ़िया लिखते हैं. एंड ही इज ऑल्सो अ नेचर पोएट. प्रकृति के कवि हैं. जैसे अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ भी प्रकृति के कवि माने गए हैं, उसी तरह से ये भी प्रकृति के कवि हैं. इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का बहुत जिक्र किया है. In this poem, he describes the simplicity of common villagers in this poem. Okay? तो इस poem में जो है उन्होंने जो गांव के सीधे साधे लोग हैं, जो उनकी जीवन शैली है, how they are so blessed, how God has made the village, इसके बारे में एक comparison अपने poem में दिखाया है. तो हम लोग वही आज पढ़ेंगे. So let's start. But before starting, let us know something about our villages. हम एक दूसरे के विलेज के बारे में कुछ जानते हैं. ठीक है. सो डू यू लाइक योर विलेज? आपको अपना विलेज पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है. आई नो यू ऑल मस्ट बी लाइकिंग योर विलेज. हैव यू एवर बीन टू एनी टाउन? क्या आप किसी टाउन में गए हैं कभी? आई एम स्टेइंग इन अ टाउन एंड आई हैव बीन टू अ विलेज. ऐसा भी हो सकता है कि आप यू आर स्टेइंग इन अ विलेज एंड यू हैव बीन टू अ टाउन, और यू आर स्टेइंग इन अ टाउन एंड यू हैव बीन टू अ विलेज. तो जस्ट अकॉर्डिंगली आप आंसर करिए, अपनी कॉपी में लिखिए इस क्वेश्चन के आंसर को. तो मैं तो टाउन में रहती हूँ, मैंने टाउन देखा है. कैन यू मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन आवर विलेज एंड द टाउन विच यू हैव विजिटेड? क्या आप ऐसे 3 डिफरेंसेस लिख सकते हो, बता सकते हो विलेज और टाउन के बीच में क्या है? For example, I can tell you one difference is that villages are pollution free, but town में बहुत pollution होता है. There is another difference. Villages have less number of hospitals, but town में hospitals ज़्यादा होते हैं या अच्छे भी होते हैं, because जो भी लोग हैं वो शहरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. तो that is why the good doctors are staying in towns. So these are few of the differences. If you observe some difference, please write it down in your copy. So now let's start understanding the poem. So first of all, we will discuss the first 2 stanza of the poem. And the first stanza goes like this. First stanza में poet ने ऐसे लिखा है, God made the country and man made the town. God, Ishwar, made the country and man made the town. Here जो country है, this country is village. यहाँ पे जो ये country के बारे में बताया जा रहा है, actually this country जो है poet जो है village को country बोल रहे हैं. Okay?
सो दिस कंट्री इज एक्चुअली, आप इसको कंफ्यूज मत करना, देश मत समझना। तो ऐसे गांव को लोग देश भी बोलते थे, हम अपने देश जा रहे हैं। आप कभी बाहर जाओगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। What wonder then that health and virtue gift? What wonder then that health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter draught? That life holds out to all should most abound and least be threatened in the fields and groves. So here what the poet want to say is that the people of village have the virtue of health. दे हैव द गिफ्ट ऑफ हेल्थ एंड वर्च्यू। उनके पास जो है ईश्वर ने उनको क्या दिया है, उनको सद्गुण दिए हैं, वर्च्यू सद्गुण दिए हैं, एंड हेल्थ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य दिया है, विच इज नॉट देयर विद द पीपल ऑफ टाउन, दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट। वो अकेले जो है, ये जो हेल्थ का गिफ्ट है, ये जो सद्गुण और स्वास्थ्य का जो तोहफा है, इसके अकेले के वजह से मनुष्य के जीवन में जो है जितने भी कड़वे समय होते हैं जो उन्हें गुजारने पड़ते हैं, वो अकेले ही बहुत बढ़िया हो जाता है। लोग कहते हैं ना, स्वास्थ्य, अगर स्वस्थ है कोई व्यक्ति तो उससे बड़ा धन किसी के पास कुछ नहीं है। सो हेल्थ इज वेल्थ। सो दैट इज व्हाट द पोएट वांट टू से, दैट द पीपल ऑफ अ विलेज हैव द वर्च्यू ऑफ हेल्थ एंड दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट बाय अ गॉड टू द पीपल ऑफ विलेज, जो कि टाउन के लोगों के पास नहीं है। और ये गिफ्ट उनके जीवन में जो बाकी के कोई दुख हैं उस सबको अकेले ही खुशियों में बदल देता है, मीठा कर देता है। That life holds out to all should most abound and least be threatened in the fields and groves. और इसकी वजह से जो है उनके पास, ग्रामीणों के पास जो है प्रचुर मात्रा में है उनके पास जीवन, और जिसकी वजह से वो आराम से खेतों में, बाग बगीचों में आराम करते हैं, उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं होता है। ओके, सो अल्टीमेटली इन दिस whole stanza what the poet want to say is that the people of a village have a very fortunate, they are very fortunate and they had the gift of health because of which everything else is null and void। बाकी सारी चीजें किसी को नहीं चाहिए अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो। There are few difficult words जिसके मीनिंग हिंदी में यहाँ पे लिखे हुए हैं। वर्च्यू मीन्स सदाचारी या सद्गुण, बितर मीन्स करवा, प्रारूप, थ्रेटन मीन्स धमकी। Now let's see the second stanza of the poem. Possess you, therefore you who borne about in chariots and sedans, know no fatigue, but that of idleness and taste no scenes. But such as art contrives, possess you still, your element there's only can you shine. Here ये जो आप देख रहे हो इसको यू पढ़ना है आपको, ठीक है, इसको आपको यू पढ़ना है, YOU. So in this stanza what the poet want to say is that कि it's quite possible that the people of a town they are using chariots and sedans, यानी कि जो पुराने जमाने में जो शहर के लोग होते थे वो चैरियट्स, रथ और पालकियों से आया जाया करते थे, तो वो ही सुविधा होती थी। और बिकॉज ऑफ विच दे नो नो फैटिग, उनको कोई थकावट महसूस नहीं होती थी। हो सकता है कि उनको कोई थकावट महसूस नहीं होती हो, लेकिन बट दैट ऑफ आइडियलनेस, ये जो आइडियलनेस है यानी आलस्य है, उसका तो वो तो उनको मिलता था, एंड उनको कोई भी सीन्स को देखने को मौका नहीं मिलता था। जो ब्यूटी है किसी रास्ते की या कहीं जाने आने की, वो लोग मिस करते थे, इससे वो लोग वंचित रहते थे। और शहर के जो लोग हैं वो आविष्कार कला में तो बहुत आगे हैं, उनके पास बहुत सारे गुण हैं जो वो अचीव करते हैं, ओके, लेकिन उनका योगदान बहुत है, लेकिन देयर ओनली यू कैन शाइन। लेकिन जो ग्रामीण है, ग्रामीण किसी को भी हानि पहुंचाने की भावना नहीं रखते, और ये हमेशा इसलिए वो खुश रहते हैं। वो उनके पास क्या गुण है, उनका क्या योगदान है कि वो जो है आलस नहीं होता उनके जीवन में,
उन्हें कोई इसके वजह से कोई तकलीफ नहीं होती और इसलिए वो हमेशा चमकते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो भले ही बहुत सारे आविष्कार करे, बहुत सारा उन्होंने आविष्कार के नाम पे ये चैरियट्स और सेडन्स, पालकियां बनाई हैं अपने आराम के लिए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो खुशी नहीं है जो एक ग्रामीण लोगों के जीवन में है। दिस इज व्हाट द पोएट वांट टू से इन दिस two stanzas. Okay, I hope you have understood the two stanzas. Let's move to the last two stanza of the poem. So there only minds like yours can do no harm. Our groves were planted to console at noon. The pensives wander in their shades at eve. The moonbeam sliding softly in between. The sleeping leaves is all the light they wish. So is paragraph में what the poet want to say? There's only minds like yours can do no harm. ये वो गांव के लोगों को कह रहे हैं कि उनके जो दिमाग है वो कभी भी किसी के साथ जो है बुरा नहीं कर सकते। They can do no harms. Our groves were planted to console at noon. उन्होंने groves लगाए हैं यानी plants लगाए हैं, किस लिए? दिन में धूप से बचने के लिए, कंसोल करने के लिए। The pensive wandered in their shades. और जो उस वहां पे जो लोग हैं वो लोग जो उनकी छाया में विश्राम करते हैं, लोग वो आराम करते हैं और इसकी वजह से जो है शाम के समय वो क्या करते हैं? द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन। जो मून बीम है, मून बीम का मतलब होता है चांद का रोशनी। चांद की जो रोशनी होती है वो धीरे से पेड़ों के बीच से आती है, ठीक है, नीचे की तरफ आती है। और जो स्लीपिंग लीव्स है, इट्स ऑल द लाइट दे विश। और स्लीपिंग लीव्स, सोए हुए पत्तों को सारे जो रोशनी चाहिए होती है वो सब उनको मिल जाती है। सो दिस is the meaning of the third stanza. And what is the meaning of fourth stanza? Birds wobbling all the music we can spare. जो birds हैं, चिड़िया हैं, वो क्या करती हैं? वेबलिंग यानी कुक 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 कु जो कुकता हुआ जो गाना गाना होता है, तो ये कोयल जो है वो कुकू करती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प दे बट्स इक्लिप्स। इक्लिप्स यानी होता है ग्रहण। सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, तो वो जो चमक है उसमें कभी कभी ग्रहण लग सकता है, ठीक है। आपका जो लैंप है उसमें ग्रहण लग सकता है, लेकिन चांद की जो रोशनी है या जो गाना सुनने की वजह से, चिड़ियों का गाना जो गाना है, उससे कोई किसी को तकलीफ नहीं हो सकती। आवर सॉफ्टर सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कन्फाउंड। जो ये सैटेलाइट्स है इसकी वजह से सारे हमारे जो चिड़िया हैं वो गाना गाना बंद कर दी हैं। Our more harmonious notes the thrush depart sacred and the offended nightingale is mute। और हमारी वजह से जो है, जो नाइटिंगल है, जो गुनगुना गाती हुई पक्षी है, वो शांत हो चुकी है, वो डर गई है। वो क्यों डर गई है? वो इसलिए डर गई है क्योंकि उसको अब इन सैटेलाइट से, बिजली के तार होते हैं उसकी वजह से वो अब चिड़िया पेड़ पे दिखाई नहीं देती और वो गाना गाना छोड़ चुकी है। दिस इज व्हाट द पोएट वांट टू से इन दिस टू स्टेंजास, दैट बेसिकली जो गांव के लोग हैं दे हैव द प्लेजर ऑफ moonbeam, they have the pleasure of groves because of which they can console at noon। जो वेंडर्स हैं, जो राही हैं, राह गुजर जो जाते आते हैं, वो आराम से उन पेड़ की छांव का मजा लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई पेड़ का छांव हमें शहर में देखने को मिलता नहीं है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उसकी वजह से ये चांद की रोशनी हमें हमारे घरों तक नहीं आ पाती है। और जो चिड़िया हैं वो पेड़ के जो तार लगे हुए हैं बड़े बड़े, उसकी वजह से अब वो भी गाना गाना छोड़ दिए। शहरों में तो वी आर नॉट इवन एबल टू सी द बर्ड्स प्रॉपरली। सो लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम। सो द पोएट हैज ट्राइड टू कंपेयर द लाइफ ऑफ विलेज एंड द टाउन। जो पोएट है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कंपेयर किया है द लाइफ ऑफ विलेज एंड ऑफ टाउन, शहर और गांव के लाइफ को कंपेयर किया है। द पोएट बिलीव्ड that the village are made by God, as there is no artificiality and everything is natural, but the town are made by the man, as most of the things are invented and made by them।
पोएट कह रहे हैं ही बिलीव दैट जो गांव है उसे ईश्वर ने स्वयं निर्माण किया है, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, उसमें कोई नकलीपन नहीं है, सब कुछ खुद पे खुद बना हुआ है। लेकिन जो शहर है उसको मनुष्यों ने बनाया है, उन्होंने नए नए आविष्कार करके उसको बनाए हैं। So, the poet has explained how the people of a village are more fortunate as they have their own lands to cultivate, own cattle for clothes and milk. They enjoy the moonlight and shades of trees. They enjoy every moment of their life. तो यहाँ पोएट ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे द पीपल ऑफ विलेज, गांव के जो लोग हैं वो मोर फॉर्चुनेट है, वो बहुत भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? वाई दे आर फॉर्चुनेट? बिकॉज दे हैव लैंड्स टू कल्टिवेट, उनके अपने लैंड्स हैं, खेत हैं कल्टिवेट करने के लिए, उनके अपने जानवर हैं जिससे वो कपड़ा दूध वगैरह सब ले सकते हैं। दे इंजॉय द मूनलाइट एंड शेड ऑफ ट्रीज, दे इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, वो अपने जीवन का सारा मोमेंट इंजॉय करते हैं। उनके जीवन में वो भागम भाग नहीं होती जो शहर के लोगों में होती है। The poet has also described the artificial luxury of town. जो आर्टिफिशियल नकली जो सुख सुविधाओं से भरा हुआ हमारा जीवन है उसके बारे में भी कवि ने बताया है। हाउ द लाइफ ऑफ अ मैन इन अ टाउन इज पोजेस्ड इन देयर ओन बाउंड्रीज, कैसे जो मनुष्य का, जो शहर के लोग हैं, शहर में जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो बंध के रह गया है उनके अपने ही बाउंड्रीज में। दे आर नॉट फ्री, दे कैन नॉट गो एवरीवेयर बिकॉज दे डू नॉट नो एवरीवन, वो सबको नहीं जानते हैं शहरों में। गांव में लोग शाम को अक्सर निकलते हैं, एक साथ बैठते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन द टाउन। पीपल डू नॉट नो ईच अदर, दे डू नॉट हैव दैट हार्मनी विच द पीपल ऑफ विलेज हैव। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। नाउ लेट्स सी, there is differentiate between a village and a town in 5 sentences। आपको 5 sentences में शहर और टाउन के बारे में डिफरेंस बताना है। जैसे माई विलेज हैव, आपके विलेज में क्या है? इफ आई वॉन्ट टू गिव एग्जाम्पल आई कैन राइट माई विलेज हैव what your village have। so my village have trees, आपके विलेज में ट्रीज हैं? आई होप आपके भी विलेज में ट्रीज होंगे। देयर आर लैंड्स एंड फील्ड्स फॉर कल्टिवेशन, मेरे विलेज में तो है कल्टिवेशन के लिए लैंड्स। आई होप कि आपके भी विलेज में होंगे। आपके विलेज में जो भी आपको लगता हो कि है वो आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में अपने कॉपी में कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ऑल, wait let me write, all the people of my village dash each other। so all the people of my village know each other, मेरे गांव के तो सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, बट शहरों में what happened, we do not know everyone। आपके शहर का पता नहीं, मेरे शहर में तो सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट गांव में everyone knowing each other। we know about all the things happen to them, हमें सबके बारे में पता होता है कि किसके घर क्या हो रहा है। there is very less dash in our village, मेरे गांव में लेस स्कूल है, देर इज ओनली 1 स्कूल, हाई स्कूल स्पेशली। आपके गांव में शायद हो सकता है ज्यादा हो, बट शहर के तुलना में गांव में देर इज वेरी लेस schools and hospitals also। we celebrate all the dash together, we celebrate all the festivals। गांव में हम लोग क्या एक साथ सेलिब्रेट करते हैं? we celebrate all the festivals in village together। ओके, एंड आप अपना वाला लिखेंगे, अपना वाला लिखेंगे। सो इन द सेम वे यू हैव टू राइट अबाउट द टाउन। व्हाट डज अ टाउन हैव? टाउन में क्या होता है? इज देयर एनी लैंड और फील्ड्स अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन? क्या कोई खेती करने के लिए जमीन होती है टाउन में? डज ईच एंड एवरीवन नो अबाउट द पीपल ऑफ अ टाउन? क्या सभी एक दूसरे को जानते हैं? व्हाट इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन योर टाउन? पोल्यूशन का लेवल क्या है आपके टाउन में? डू यू ऑल सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स टुगेदर इन टाउन? क्या टाउन में जो लोग हैं वो सारे फेस्टिवल्स बिल्कुल सबके साथ मनाते हैं जैसे गांव में पूरा गांव एक साथ मनाता है? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, एंड विद दिस आई थिंक you have enjoyed the class। so if you have enjoyed the class then happy learning, and if you like this video then please don't forget to share this with everyone। okay, and please subscribe to the channel for more such videos।
थैंक यू वेरी मच।